Hey everyone, welcome back to my channel Monica Jain this side. So today we'll be talking about the most important thing that will be the highlight of your exam, presentation skills. See, if you know everything, you have revised everything, your conceptual clarity is there, but you don't know how to present the answer, there you will lack. Because क्या होता है ना एग्जाम में if you are trying your best and still there is some problem with your answer writing, कितना लिखना है, now present कैसे करना है, what should be the three headings और conclusions कैसे देने हैं, इन चीज़ों के लिए ना few things you should always keep in your mind so that you can ace in your exam. और ये वीडियो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाना इसलिए बहुत ज़्यादा राइट है बिकॉज यू ऑल मस्ट हैव कम्प्लीटेड योर फर्स्ट रिविजन और कुछ अपना सेकेंड रिविजन शुरू कर रहे होंगे और कुछ अभी राइटिंग प्रैक्टिस पे वर्क कर रहे होंगे. तो यू ऑल शुड ऑल्सो वर्क ऑन दीज फ्यू थिंग्स दैट आई एम गोना टेल यू बिकॉज इससे यू विल गेट सो मच हेल्प कि तुम जब एग्जाम में अपने आंसर्स प्रेजेंट करोगे the conceptual clarity plus pro answer tips, आंसर राइटिंग टिप्स विट मेक योर आंसर हाईलाइट और फिर उसमें मार्क्स क्रैप करना ईजी हो जाता है. नाउ आंसर राइटिंग में थ्री कंडीशंस में पीपल स्टक होते हैं. फर्स्ट दे नो द आंसर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, पता है कि क्या लिखना है पर कैसे लिखना है, पहला सीन. सेकेंड सिचुएशन दे डोंट नो द आंसर प्रॉपरली, कहीं मिडवे में वो स्टक हो सकते हैं. थोड़ा बहुत पता है कि स्टार्ट वगैरह कैसे करना है या बीच का कुछ कंटेंट, बट कंटिन्यूएशन में दे डोंट हैव आइडिया. थर्ड थिंग कि दे कम्प्लीटली डू नॉट हैव द आइडिया. अब ऐसा होता है कि जिस क्वेश्चन के बारे में हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वी आर इन टू सिचुएशन इन दैट क्वेश्चन. आइदर वी हैव टू अटेम्प्ट इट और वी डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट इट. वी हैव टू अटेम्प्ट इट, आइदर इट इज़ कंपल्सरी और या फिर हमको मार्क्स क्रैप करने के लिए वो वही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा बहुत बन सकता है, या फिर इट इज़ लाइक कि वो कंपल्सरी ही है. तो इन दैट केस ऑल्सो there are some tips that you can follow so that you can at least grab 1 or 2 marks out of it. Starting with the situation where you are well aware means basic situation of answer writing कि तुम्हारी basic structures क्या होने चाहिए presentation के लिए. तो you can see that you should always start your answer with a relevant provision. Then you should in the law, audit, GST, even when theory question come in IDT, okay, then you should do the discussion, whatever the case is given, case scenario, whatever is it is going on, explain it what you have understood in a very short, and then you should solve whatever the practical issue means. if any practical solution is to be provided वो करो, और या फिर और थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन देना है, तुमने कैसे सिचुएशन को सॉल्व करा, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो दो. एंड देन इन कंक्लूजन whatever is your final answer, conclude with it and give a short description of hint of the provision. तो ऐसे करके this should be your basic structure of answer writing. Now coming down to practical subjects में, practical subjects में we are talking about cost, FM, accounts. पहले हम cost और FM की बस बात करेंगे because these two subjects have the answer writing more in common. Here you can see an answer of a cost. Proper all tables are solved. It is activity based chapter का question. So here tables are formed, then working notes are provided. In even working note tabular format is used. So the crux is कि जो cost और FM है ना, उसमें हमको इतना सारा practical solution करना पड़ता है. In front of you here it is the answer which will not be accepted because see it is very rough. तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा है कि what is here written. And on the other hand you have this answer प्रॉपरली वेल टेबुलेटेड, हर चीज़ टेबुलर फॉर्मेट में है, वर्किंग नोट्स प्रोवाइडेड हैं, शॉर्ट थिंग्स जो सोल्यूशंस करना है वो है. तो यू नो कॉस्ट और एफएम में बताएं तुमसे एक ही गलती होगी. तो मैं सब कुछ आने के बाद भी तुम्हारे एग्जाम में परफॉर्मेंस वीक पड़ने का कारण यही होगा दैट यू विल गेट स्टक इन बिटवीन वाइल राइटिंग द आंसर. या तो तुम ब्लैंक हो जाओगे या तो तुम इन द मिडवे सोचोगे कि अब आगे क्या करूँ. और ये सिर्फ तभी होता है व्हेन यू हैव नॉट सॉल्व द आंसर इन अ राइट फॉर्मेट. क्योंकि अगर तुम नीट एंड टाइडी अपना सोल्यूशन कंटिन्यूएशन में रखोगे ना, तो इन द मिडल तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे. तुम्हें पता है फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट एंड नाउ वेयर यू हैव टू गो, द फ्लो इज क्लियर टू यू. बट इफ़ यू विल नॉट हैव द क्लैरिटी अबाउट द फ्लो तो तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे और ऐसा हो सकता है कि यू वेस्ट योर टाइम इन दैट केस. तो वाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इवन टुडे, while practicing the mock test,
always focus on the format of answer writing, how you will present your answers and how you will start the answer. Stick to the flow of it. एंड टेबुलर फॉर्मेट में जितना हो सके उतना करो प्रैक्टिस सॉल्व करने का. तभी आई ऑलवेज से स्टार्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज उनसे बेस क्वेश्चंस के कारण ना तुमको प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम चली जाती है. तो प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी आ जाती है कि कैसे मुझे आंसर को प्रेजेंट करना है. ये प्रैक्टिस से ही होगा. यू हैव टू डू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. सो इन ऑर्डर टू क्लियर दिस थिंग कि भाई तुमको फ्लो कैसा रखना है, हाउ यू हैव टू मेक द टेबल्स, वर्किंग नोट्स एंड एवरीथिंग. नाउ कमिंग डाउन टू अकाउंट्स. अकाउंट्स में ए एस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखो अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन इज़ क्वाइट ईजी फॉर द प्रैक्टिकल चैप्टर्स, नॉन ए एस चैप्टर्स ईजिली हो जाता है. बट अबाउट दी प्रैक्टिकल चैप्टर्स, वो मतलब ए एस चैप्टर्स, उनमें कन्फ्यूजन आता है. क्योंकि उनमें हम ऐसा सोचते हैं कि अगर आंसर आया है तो हम सिंपली बस उसका रीज़न लिख दें और कंक्लूजन करते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. इफ़ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ए एस 16, तो पहले ए एस 16 का प्रोविज़न लिखो. जिस चीज़ की उसमें बात करिए पूरा मत लिखो. वट एवर कंसर्न टॉपिक इज़ ब्रॉट अप इन दैट क्वेश्चन, उस चीज़ के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा प्रोविज़न लिखो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, देन डिस्कस करो एंड देन कंक्लूड भी करो. तो ये 3 चीज़ें अकाउंट्स में भी करनी है इन द ए एस क्वेश्चंस. बाकी कमिंग डाउन टू दी अदर क्वेश्चंस, तो यू आर वेल अवेयर. हम 11-12 का कि हम 11-12 से अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, तो वेल अवेयर अबाउट दैट. सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. नाउ टॉकिंग अबाउट सम जनरल एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स जो तुमको एग्जाम में अपने आंसर्स लिखने टाइम याद रखना है. प्रैक्टिस दीज वाइल डूइंग मॉक्स ऑल्सो, जिससे तुमको अभी से ही हैबिट पड़ जाए. पहली चीज़, व्हेन यू राइट द आंसर, when you're complete with the answer, एक बार गो थ्रू करो. इफ़ दैट आंसर इज़ वेरी रॉक सॉलिड कि तुमको तो पता था इस आंसर में क्या लिखना है, तो उस आंसर को पूरा उसी टाइम पे गो थ्रू करो. मत बैठो बात के लिए, क्योंकि ये आंसर ऐसा है ना जिसमें तुम पूरा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें तुमको कॉन्फिडेंस है. इसको पूरा चेक करो ऊपर से लेके नीचे तक. मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अगर तुमने आंसर पूरा रॉक सॉलिड सही लिखा है थ्योरी में, फिर तुमने मार्क नहीं करे, नोबडी इज़ गोइंग टू चेक. अगर वो पॉइंट कहीं पे हिडन हो गया है, रिटन इन योर ओन लैंग्वेज, और वो थोड़ा सा भी हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, तो द एग्जामिनर मे नॉट फोकस ऑन इट. सो प्लीज़ मार्क इट, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. प्लीज़ चेक करो कंक्लूजन वर्थ इट है, क्योंकि कंक्लूजन डेफिनेटली एग्जाम में एवेलुएटर पड़ता है, तो कंक्लूजन पे ध्यान दो. कमिंग डाउन टू ऐसे क्वेश्चंस जिसमें तुमको ना कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, यू आर समवेयर इन मिड, मतलब कि लिखा तो जेन्युइन है बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है. उन क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना दैट यू हैव टू मार्क वट एवर यू फील लाइक कि तुमने रेलिवेंट लिखा है, सिर्फ वही मार्क करना. इररेलेवेंट चीज़ें कभी अंडरलाइन नहीं करना. इसके कारण क्या होगा ना, 2 लॉसेज होंगे. रेलेवेंट चीज़ों पे फिर पैसे फोकस चला जाएगा वैल्यूएशन का, और इररेलेवेंट चीज़ों के कारण ना वो तुम्हारे क्वेश्चन की क्वालिटी को डिग्रेडेड समझेगा, तो दैट विल बी डिसएडवांटेजेस फॉर यू. थर्ड कंडीशन, कि अगर तुमको क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता बट तुम्हें वो अटेम्प्ट करना पड़ा था, वो थर्ड सिचुएशन से रिलेटेड, ठीक है. ट्राई टू समवेयर फाइंड कि तुम ऐसा क्या अपेयर करवा सकते हो कि जो थोड़ा बहुत भी तुम्हें माइंड में हैमर हो रहा है. भले इट्स बाद में पता चलता है इट्स यूजलेस, बट वॉट इफ गलती से उस टाइम पे वो चीज़ तुम्हें रेलेवेंट लग जाए और बाद में पता चले वो रेलेवेंट थी, तो उसको भी मार्क करो. और अबाउट द डिफरेंस बिटवीन, अगर तुमको क्लैरिटी नहीं है ना, तो कभी भी वो टेबल नहीं बनाना डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. हमेशा ना पैराग्राफ्स में लिखना, जिससे क्या होता है ना, यू आर हैविंग मोर कंटेंट विद यू टू राइट एंड यू वोंट बी कन्फ्यूज इन द मिडल. और अगर तुम दिस एंड दैट करके लिखोगे ना, वो 2 टेबल्स बना के, तो तुमको एग्जैक्ट क्लियर पॉइंट्स चाहिए कि तुम्हें क्या लिखना है, तो दैट विल समहाउ बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. तो उसको प्रिवेंट करना. एट दी एंड के लिए अगर कभी भी चेक करने का टाइम ना मिले, तो I'm again saying don't panic, because with the trick of checking these rock solid answers then and there, you have covered your portion that is required to be checked by you, so you are on a good pace. So yeah, this was about the whole presentation tips that you should remember. And for any inquiry related to your doubts, if you are stuck somewhere, you need a planner, you want to plan your revision for a month or something, and you are very much confused, whatever you have doubts, connect with me on Telegram. I'm available there.
And yes, for the mock test inquiry also, I'm also available there. Find me there for any sort of confusion you have related to your preparation. So said, I hope you liked the video. I hope you found it helpful. Please take the most out of it. Stay tuned for more such content. Subscribe the channel for more such videos. And yes, it's high time now. Please properly revise everything. Try to involve RTPs, MTPs and PYQs बहुत मस्ट होते हैं. एक मॉक टेस्ट ज़रूर दो. And stick to your plan. Be consistent, be disciplined and stick to your plan. So yeah, see you there in next video.